take some of the plants which are available in my garden. First of all take the potato. The botanical name of the potato is Solanum tuberosum, and the botanical name of tomato is Solanum lycopersicum, and the botanical name of the brinjal is Solanum melangiana. So as you can see, this Solanum genus is common to all these plants. So Solanum, the group of genus is constitute the family. So here the family would be Solanaceae. All the three plants belong to the family Solanaceae. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BS Bio Booster. आज हम करेंगे चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में. In earlier part we have already discussed about some points. Today we will discuss the new points. So in earlier classes we have discussed about what is living and what is biodiversity, what is systematics and what is binomial nomenclature. Today we will discuss about the biosystematics and taxonomic categories एंड टेक्सोनॉमिकल एड्स. आज हम ये भी जानेंगे कि बोटानिकल गार्डन कैसे हम बना सकते हैं अपने घर पे और हर्बेरियम शीट कैसे बना सकते हैं. आई विल शो यू माय मिनी बोटानिकल गार्डन टू यू सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि हाउ देयर इज द बोटानिकल गार्डन लुक लाइक, हाउ वी कैन मेक द हर्बेरियम शीट. तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं. आज से हम शुरू करते हैं सबसे पहले टेक्सोनॉमी से. टेक्सोनॉमी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफली जानते हैं एंड ये कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो चलिए, टेक्सोनॉमी मीन्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा और कैटेगरीज. दैट मीन्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स of external characteristics as well as internal structure of an organisms, it can be classified into different taxa or categories. Taxa means the different categories, for example class, order, family, genus, species, kingdom. These all are the taxa. So who coined the term taxonomy? A.P.D. Candolle coined in 1813 coined the term the taxonomy. It's very important. Who coined the term? A.P.D. Candolle in 1813. So in this taxonomy there are three fields are there through which we can classify the organisms. These are identification, second is classification, and third is naming. So here identification can be done with the help of keys, as we have already discussed about it. Classification is classification of the organisms in different categories or taxa, and naming means nomenclature of an organisms. So how can be the taxonomy be done? It can be done on the basis of the external character, internal character, as well as evolutionary history of an organism. So next we will discuss about what are the types of taxonomy. Basically there are three types of taxonomy. First is alpha taxonomy, second is beta taxonomy, and third is omega taxonomy. So alpha taxonomy is also known as the classical or morpho taxonomy because it considers only the morphology, that means external character of an organism, not the internal character. So that's why it included in the old systematics. So because it's considered only the morphology, that means habit, habitat, external structure of the leaf, flower, stem, root, etc., not the internal structure. Next is beta taxonomy. In beta taxonomy it considers the genetics as well as anatomy and physiology of an organism. That means internal structure of an organism are studied in beta taxonomy. Third is omega taxonomy. This taxonomy is based on the phylogenetic relationship of an organism. That means what is the evolutionary history of an organism is also studied under the omega taxonomy. This omega taxonomy is coined or developed by the Sir Julian Huxley. This omega taxonomy is also known as the neo-systematics. It's a neo-systematics. आप लोग सोच रहे होंगे कि where it is written? It is written in your NCERT book. If you will go in detail,
in NCERT book, it is written as neosystematics. So new systematics is also known as neosystematics or biosystematics or omega taxonomy. So these whole terms are important as exam point of view. So this neosystematics is concept is developed by the Sir Julian Huxley in 1940. Very important. Who developed the biosystematics? Sir Julian Huxley in 1940. Now let's learn about what is difference between the systematics as well as neosystematics. This is very important. Many three marks come from this topic only. So please study it carefully. So old systematics is here only 2 or 3 organisms are considered for classification, but in new systematics 4 to 5 or more than 5 organisms are considered for classification. So first point of difference is that means many organisms are considered in new systematics, and in old systematics only few organisms are considered. Second is classification based in old systematics, classification based only on the alpha taxonomy, not on the beta as well as omega taxonomy. But in new systematics, whole three alpha, beta and omega taxonomy is considered. So this is the good one as compared to the old systematics. Next, here the basic unit of classification is the species, not the population, but in new systematics the basic unit is population. So that's whole for this new systematic. One important point is that here the evolutionary history of an organisms are studied, but in this case old systematics only morphological characters are considered. So next we will discuss about the taxonomic categories. चलिए दोस्तों, अब हम न्यू टॉपिक करते हैं taxonomic categories. This taxonomic categories is introduced by the Linnaeus in 1751. So इसमें 7 मेन कैटेगरीज आ जाते हैं. फर्स्ट आता है, सबसे लोअर में आता है स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, सॉरी किंगडम. तो ये सारे जो 7 जो है ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, और भी इसके फर्दर कैटेगरीज है, लेकिन मेन हम इसी को कैटेगरीज को लेके चलते हैं. सो स्पीसीज सबसे नीचे में आता है, सबसे लोअर कैटेगरी में आता है, एंड किंगडम सबसे ऊपर कैटेगरीज में आते हैं. सो स्पीसीज और ये नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो इन द नंबर ऑफ कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग. अगर जीनस और स्पीसीज की बात करें तो इनमें या फैमिली और जीनस की बात करें तो इनमें कैरेक्टर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑर्डर ऑफ फैमिली या क्लास या ऑर्डर में. तो इसमें 1 या 2 कॉमन कैरेक्टर्स है, लेकिन इन सब में कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलते हैं इन नीचे वाले इसमें. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. Okay, let's talk about the categories. What do you mean by rank or categories? Each categories is known as the rank or taxon. So when the taxon are arranged in increasing order of the number of animals, these are known as taxonomic hierarchy. तो सबसे नीचे से जब हम ऊपर तक क्लासिफाई करते हैं तो इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन. इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम, दैट इज नोन एज होमो सेपियन. इसमें सेपियन स्पीसीज नेम है, होमो इज द जीनस नेम, होमिडे इज द फैमिली नेम, ऑर्डर इज प्राइमेटा, ममेलिया इज क्लास, कॉर्डेटा इज फाइलम एंड एनिमेलिया इज द किंगडम. एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये फाइलम है पी से प्लांट्स. नहीं, ऐसा नहीं करना. फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ द वीट. तो वीट की अगर हम बात करें तो इसका बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम. मैंने आपको पहले भी बताया था, बायोलॉजिकल नेम इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, जीनस एंड स्पीसीज नेम.
So Triticum is the genus name and Estivum is the species name. So Triticum estivum. Next is the family. Family is Poaceae. And इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो फैमिली के लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट मीन्स ACEAE, ACEAE, ये यूज होता है फैमिली के लिए सफिक्स. एज, पोएज, दैट मीन्स एज सफिक्स यूज होता है फॉर ऑर्डर. ऑर्डर के लिए एज, तो ये बहुत जरूरी है. ऑर्डर और फैमिली में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं. तो फैमिली के लिए ACEAE एंड ऑर्डर के लिए ALES यूज होता है. अगर हम बात करें क्लास, सो इसमें क्लास ये जो वीट है मोनोकोटिलिडन में आता है. मोनोकोटिलिडन मीन्स इट इज मेड अप ओनली वन कोटिलिडन. डाइकोटिलिडन मीन्स इट इज दैट इज मेड अप ऑफ टू कोटिलिडन. सो वीट जो है वो मोनोकोटिलिडन में आता है बिकॉज उसके एक सिंगल कोटिलिडन होते हैं. एंड इसके जो सफिक्स है यूज होती है AE, ऑप्सिडा या फिर PHYCEAE, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, ये सारे यूज होते हैं फॉर क्लास के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिवीजन. प्लांट में जो है डिवीजन हम यूज करते हैं, तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी. तो इसका सफिक्स ये स्पर्मे ही होता है या फिर फाइटा होता है सफिक्स. ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सफिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. और किंगडम की अगर बात करें तो इसका कोई सफिक्स नहीं है. सो एनिमेलिया, दो ही किंगडम है हमारे पास, एक एनिमेलिया है और दूसरा प्लांटेई है. तो दैट इज ऑल क्लियर अबाउट दिस वन. सो सबसे पहले अगर हमें याद करना है तो इसको हम इजिली याद कर सकते हैं. किंग, प्ले, कार्ड, ऑन, फ्लैट, ग्रीन, स्टूल. अगर आप 5-6 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा और ऐसे आप इजीली आप अरेंज कर पाओगे क्योंकि अरेंजमेंट भी आता है क्वेश्चंस. सो हम अब स्पीसीज के हर एक चीज़ जो कैटेगरीज है इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या चीज़ है. सबसे पहले देखते हैं स्पीसीज. व्हाट डू यू मीन बाय स्पीसीज? So, according to the biological concept, species is a group of organisms that may interbreed and produce the fertile offspring. Species is a group of organisms. That means those similar organisms, if they reproduce to each other, they obtain the fertile offspring that is known as the species. तो अगर इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होती है, अगर दो स्पीसीज हमने ऐसे लिए कि इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही है, दैट इज नॉट अ स्पीसीज. यानी कि सेम स्पीसीज नहीं होंगे, वो डिफरेंट स्पीसीज होंगे, इसलिए इंटरब्रीड नहीं हो रही है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं जीनस. जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज जीनस. ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली. ग्रुप ऑफ फैमिली इज नोन एज ऑर्डर. ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज नोन एज क्लास. And group of class is known as phylum or division. Group of phylum or division is known as kingdom. Let's take one more example of the plants. Let's take some of the plants which are available in my garden. Let's first of all take the potato. The botanical name of the potato is Solanum tuberosum, and the botanical name of tomato is Solanum lycopersicum. And the botanical name of the brinjal is Solanum melangiana. So as you can see, this Solanum genus is common to all these plants. So Solanum, the group of genus constitute the family. So here the family would be Solanaceae. All the three plants belong to the family Solanaceae. And here the order should be the Polymonias. So these potato, tomato and brinjal belong to the order Polynomials and belong to the family Solanaceae. And here the class would be Dicotyledone because here the leaf of the plant is reticulate venation and the flower is pentamerous. So that's why it belongs to the class Dicotyledone. And division is angiosperm because it's a flowering plant, that's why it is the angiospermy. And kingdom, as you know, it's all belong to the Plantae. Let's talk more example of this one, tulsi and mint.
This tulsi and mint belong to the family Lamiaceae. As let's talk about the biological name of the tulsi. Biological name of tulsi is Ocimum centum, and biological name of mint is Mentha spicata. So these both belong to the family Lamiaceae. And here comes to the mango. It is given in your NCERT book, so it's very important. You have to learn the classification of this mango. So as you know, the scientific name of mango is Mangifera indica, and family is Anacardiaceae, and order is Sapindales. Order is Sapindales. And here the classes would be same because it's belong to the dicotyledony division Angiospermae and the kingdom Plantae. So it's all belong to the same class. चलिए दोस्तों, अब हम टेक्सोनॉमिकल एड्स कर लेते हैं. इससे टेक्सोनॉमिकल एड से हमें ये पता चलता है कि हम कैसे ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और कैसे उसके नेमिंग कर सकते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट एड्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं इन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. सो सबसे पहले हम लेते हैं म्यूजियम. फर्स्ट इज म्यूजियम, सेकंड इज हर्बेरियम, third is botanical garden, fourth is zoological park, fifth is monograph, sixth is manual and catalog, and many more are there. Keys are there, and this flora fauna is there. So first of all we will do this museum. What do you mean by museum? Museum क्या होता है और ये कहाँ कहाँ present है? We will discuss about it. Museum is the collection of preserved plant and animal specimen for the study and references. So museum में plant और animal के specimen रखे जाते हैं ताकि वो उसको अच्छे से study कर सके. हम आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो बायोलॉजी लेबोरेटरी होती है उसमें भी स्पेसिमेन रखे रहते हैं, या फिर आपके कॉलेजेस वगैरह में, कॉलेजेस में भी होती है लैब, तो उसमें भी रखे रहते हैं, स्पेसिमेन रखे रहते हैं, और प्लांट्स के हर्बेरियम शीट रखी रहती है. तो उससे इसी की कलेक्शन को हम म्यूज़ियम बोलते हैं. तो म्यूज़ियम में जो स्पेसिमेन जो रखा जाता है वो फॉर्मेलिन में रखा जाता है. फॉर्मेलिन इज अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर. सो इसमें जब ये स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है तो जो इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर वो इंटैक्ट रहती है. और वो मोस्टली ग्लास जार में ही रखा जाता है स्पेसिमेन को. अगर हम बात करें ड्राई स्पेसिमेन तो बोन्स वगैरह मतलब उसको कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ रखा जाता है एज ए ड्राई स्पेसिमेन. बोन्स एंड प्लांट्स को भी प्रेस करके, यानी उसको सुखा के प्रेस करके रखा जाता है हर्बेरियम शीट की तरह. नेक्स्ट है इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है. ये तो थी बात म्यूज़ियम के बारे में. अब हम बात कर लेते हैं हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या होता है, इसकी साइज़ क्या होती है. साइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये मोस्टली क्वेश्चन साइज़ के बेसिस पे आता है हर्बेरियम के शीट के. तो हम कर लेते हैं. हर्बेरियम इज़ द स्टोर हाउसेस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस. ये सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, ये नहीं एनिमल्स मत लिख के आ जाना. हर्बेरियम इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन. And the size of herbarium sheet is 16.5 into 11.5 inches. That is very important. कोई बच्चे सेंटीमीटर लिख के आ जाते हैं, सेंटीमीटर नहीं लिखना, inches. 16.5 into 11.5 inches. And the largest herbarium of the world is Royal Botanical Garden. क्यों? इंग्लैंड में है, सबसे बड़ा है रॉयल बोटेनिकल गार्डन. और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में. अब हम स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं कि हम कैसे हर्बेरियम शीट को बना सकते हैं. मैंने भी बना है एक फॉर योर रेफरेंस. तो सबसे पहले इसके जो स्टेप्स है 5 स्टेप्स होते हैं. पहले होता है कलेक्शन, सेकेंड इज प्रेसिंग, थर्ड इज ड्राइंग, फोर्थ इज माउंटिंग एंड फिफ्थ इज लेबलिंग. सबसे पहले हम कलेक्शन, कोई भी जो भी हम स्पेसिमेन जो हम नहीं जानते, पहले प्लांट स्पेसिमेन लेंगे हम और उसको फिर प्रेस करेंगे. प्रेस कैसे करते हैं, एक जो न्यूज़पेपर लिया हमने, न्यूज़पेपर के अंदर वो प्लांट को डाल के
और क्या करना है, प्रेस करने के लिए आपको ये नॉर्मल आयरन प्रेस नहीं करना है, उसको या फिर अपने तकिया के नीचे रख लो या फिर बिस्तर के नीचे रख लो, तो 2 या 3 दिन में वो प्रेस हो जाता है। मैंने ये न्यूज़पेपर में ही किया था प्रेस, आप देख सकते हैं कि अच्छे से एकदम प्रेस हो चुका है, 4 या 5 दिन में आराम से प्रेस हो गया है। देन उसके बाद में फिर हम करते हैं ड्राइंग। अगर मान लो कि बरसातों के टाइम पे बहुत ज़्यादा फंगस लगने का डर रहता है, तो इसलिए वो प्रेसिंग के बाद में 2-3 दिन धूप में सुखा भी सकते हैं, ताकि जो जो कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह नहीं लगे, या फिर कभी कभार एंटी फंगस स्प्रे भी डाला जाता है उस पर। तो ये 3 स्टेप हो गए ड्राइंग। फोर्थ इज माउंटिंग। माउंटिंग मीन्स चिपकाना, हर्बेरियम शीट पे उसको चिपकाना, उसको बोलते हैं माउंटिंग। एंड नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेबलिंग एक साइड में की जाती है, उसमें हर्बेरियम लिखना होता है, उसके बाद में अपने कॉलेज का नाम लिख लो, अपने स्कूल का नाम लिख लो, उसके बाद में फैमिली लिखना होता है, बोटैनिकल नेम लिखना होता है, फिर उसके बाद में लोकल नेम क्या है, एंड प्लेस, डेट एंड कलेक्टेड बाय, बस ये इंफॉर्मेशन लिखना होता है। फर्स्ट इज क्या, मतलब इसका फैमिली का क्या नाम है, बोटैनिकल नेम, लोकल नेम, प्लेस, डेट एंड कलेक्टेड बाय, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लेबलिंग भी, ये लेबलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेबलिंग में क्या क्या करना चाहिए, और साइज से रिलेटेड। तो ये तो थी बात हर्बेरियम की। अब हम आगे बढ़ते हैं बोटैनिकल गार्डन की ओर। बोटैनिकल गार्डन इज द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। सो जो लिविंग प्लांट्स जो कि इंडेंजर्ड हो चुके हैं, जो कि अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बहुत कम ही है, तो उसको एक पर्टिकुलर गार्डन टाइप होता है, उसमें वो रखा जाता है, उगाया जाता है, और उसको फ्लरिश भी किया जाता है। इट इज़ द ex situ conservation of germplasm. Ex situ conservation of germplasm means those organisms which are endangered, those plants which are endangered are kept in this botanical garden, so that we will get the live specimen, not the fossil one. We get the live specimen of that plant. So this is also very important. So why botanical garden is important? Because it helps in ex situ conservation of germplasm. Next, first established botanical garden is पीसा बोटेनिकल गार्डन इटली में है। तो सबसे पहले यही बोटेनिकल गार्डन डेवलप हुआ था। अदर बोटेनिकल गार्डन हमारे इंडिया में है, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन बेंगलुरु में है। नेक्स्ट नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, एंड थर्ड इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं जा रखी हूँ क्योंकि मेरी कॉलेज वगैरह वहीं से हुई है, तो यहाँ का मैंने म्यूज़ियम भी देख रखा है एंड बोटेनिकल गार्डन भी दे रखा है, बहुत अच्छा है, कभी मौका मिले तो आप भी जाइएगा। नेक्स्ट इज लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग। तो ये तो थी बात बोटेनिकल गार्डन की। नेक्स्ट हम करते हैं जोलॉजिकल पार्क। जोलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन में सिर्फ प्लांट्स को रखते हैं, वैसे ही जोलॉजिकल पार्क होता है, इसमें सिर्फ एनिमल्स को रखते हैं, लेकिन केजेस में नहीं रखते। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जू नहीं है, ये जोलॉजिकल पार्क है। उनके नेचुरल हैबिटेट में एनिमल्स को रखेंगे, लेकिन उसके प्रेजेंस नहीं लगे रहेंगे। तो देयर आर अबाउट 200 जोलॉजिकल पार्क इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये तो थी बात जोलॉजिकल पार्क की। अब हम बढ़ते हैं आगे। मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स क्या होता है? मोनोग्राफ कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन। वन टेक्सॉन यानी कि वन कैटेगरी, इसके बारे में ही डिस्क्रिप्शन होती है। जैसे मान लो कि यही ले लिया मैंने, एक ये जो ले लिया मैंने, इसका नाम है कैटेटेंथस रोजस, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे एक या फिर मुझे बुक लिखनी है, तो पूरी मैं इसकी पूरी जानकारी हासिल करूँगी, या फिर एक मैगजीन के रूप में या फिर पैम्पलेट के रूप में रहता है, तो उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्सॉन पे की डिस्क्रिप्शन होती है, नॉट ऑल, सारे उस पर नहीं होती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर उस पर, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। नेक्स्ट है मैनुअल एंड कैटलॉग। मैनुअल एंड कैटलॉग ये चीज़ है जिससे कि हमें नेम ऑफ द स्पीसीज ऑफ एन एरिया समझ में आता, पता चलता है। जैसे कि मान लो कि अगर आपको कोई बुक्स वगैरह आपको लाइब्रेरी से ढूंढना, तो आप कैटलॉग में सबसे पहले जाओगे, उसके ऑथर के नेम, बुक के नेम आप उससे ढूंढोगे।
तो वैसे ही ये कैटलॉग बना रहता है जिसमें प्लांट्स के नेम मेंशन किए रहते हैं, एनिमल्स के नेम मेंशन किए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल वाइज, एंड वी विल सर्च इट आउट फ्रॉम देयर। तो ये तो थी बात टेक्सोनॉमिकल एड्स। और आगे टेक्सोनॉमिकल एड्स करते हैं, जैसे कि हम और आगे करेंगे कीज़ क्या होता है, फ्लोरा और फोना क्या होता है। चलिए हम और भी टेक्सोनॉमिकल एड्स कर लेते हैं। फर्स्ट इज फ्लोरा। फ्लोरा इज द सम ऑफ प्लांट स्पीसीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड द फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। फ्लोरा में सिर्फ जो कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज आते हैं, यानी कि प्लांट स्पीसीज की कलेक्शन को हम बोलते हैं फ्लोरा। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक टाइप का इंडेक्स है जिसमें मान लो कि कश्मीर है, कश्मीर की में कितने प्लांट स्पीसीज है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है एक बुक में, एक तो उसको बोलते हैं फ्लोरा। अगर हम बात करें फौना की, फौना इज द सम ऑफ एनिमल स्पीसीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड अ फौना ऑफ दैट एरिया। इसमें एनिमल स्पीसीज की पूरी इंडेक्स होगी और इसमें प्लांट स्पीसीज की पूरी इंडेक्स होगी। प्लांट स्पीसीज के लिए फ्लोरा यूज होता है टर्म, एंड एनिमल स्पीसीज के लिए फौना यूज होता है टर्म। अगर हमें पूरे लार्ज स्केल पे अगर बात की जाए प्लांट्स या एनिमल्स की, लार्ज स्केल पे अगर प्लांट्स प्रेजेंट है जैसे मान लो तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे वेजिटेशन, वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, वेजिटेशन ऑफ इंडिया। सो प्लांट स्पीसीज विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ कंफ्यूज होना नहीं है। फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीसीज की कलेक्शन को बोलते हैं फ्लोरा, एनिमल स्पीसीज की कलेक्शन को बोलेंगे फौना। नेक्स्ट आ जाता है कीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस कीज़ के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। इट इज़ द स्कीम ऑफ डायग्नोस्टिक अल्टरनेट कैरेक्टर और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर विच प्रोवाइड एन ईजी मीन्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज। कोई भी एक अननोन स्पीसीज है उसकी डिस्क्रिप्शन करनी है, उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, उसकी नेमिंग करनी है, लेकिन हमें पता नहीं हमें कैसे करेंगे, तो ये कीज़ हमें बहुत हेल्प करता है इसके आइडेंटिफिकेशन में। दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द रे ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इसमें होता है की डाइकोटोमस की, डाइकोटोमस की क्या होता है, टू डिस्क्रिप्शन टू द चूज फ्रॉम ईच स्टेप। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कीज़ को। मैंने यहाँ दो कीज़ लिखी है, एक तो लिखा है जॉइंटेड लिम्ब, एक दूसरा लिखा है नो जॉइंटेड लिम्ब। ये है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को बोलते हैं कपलेट, एंड इसमें से एक जो कैरेक्टर है इसको हम बोलेंगे लीड। सो अगर हम ये ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो इसमें पहले आया जॉइंटेड लिम्ब, हमें पता नहीं जॉइंटेड लिम्ब, तो गो टू सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। सो इसमें आता है नो जॉइंटेड लिम्ब। नो जॉइंटेड लिम्ब तो आपके पास यहाँ पर अर्थवर्म ही है, यहाँ पर कोई इसके लिम्ब है ही नहीं, तो जॉइंटेड कहाँ से होगी, तो ये अर्थवर्म हमने पहले पहचान लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं मोर देन 5 पेयर ऑफ जॉइंटेड लिम्ब। 5 पेयर से ज़्यादा किस में है, इसमें है सेंटीपीड में, तो इसको भी हमने पहचान लिया सेंटीपीड। इसी का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 5 और फ्यूअर पेयर ऑफ जॉइंटेड लिम्ब। तो फ्यूअर पेयर ऑफ जॉइंटेड लिम्ब इनमें बहुत सारे हैं, तो हम गो टू 3 या स्टेप 3 लिखा है हमने, गो टू 3। अब थर्ड कीज पे चले जाते हैं। इसमें फर्स्ट पेयर ऑफ लिम्ब फॉर्म द लार्ज क्लॉज, तो फर्स्ट पेयर ऑफ द लिम्ब इसी में लार्ज क्लॉज करता है, तो हमने ये क्रैब को भी पहचान लिया। और इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग कीज है नो लार्ज क्लॉज, तो नो लार्ज क्लॉज हमें पता नहीं, तो हम स्टेप 4 पे चले जाएंगे। स्टेप 4 पे अब आ जाते हैं, तो स्टेप 4 पे आ गया 2 पेयर्स ऑफ द लिम्ब्स, तो हमें ये पता चल गया लोकस्ट, एंड 4 पेयर ऑफ लिम्ब्स, 4 पेयर ऑफ लिम्ब्स स्पाइडर। तो ये हमने इस तरीके से सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं सबको पहचान लिया और सबको नेमिंग दे दिया। तो ये इस तरीके से हम कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मतलब रट्टे मार लेते हैं कीज़ क्या होता है, लेकिन कीज़ ये चीज़ है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, यू कैन वॉच इट, एंड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।